In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful, whose punishment is justice and forgiveness is mercy. Dear students, Assalamu alaikum. I am Ali Riza Rajput. I hope you all are fine. And today I am going to deliver my lecture on novel. Our today's topic is novel, its definition, its elements, its origin, and its types. Dear students, today, first of all, I would like to tell you the origin of the word novel. Dear students, the word novel is derived from Italian word novella. I have written on the board, Italian word novella. Novella means new, okay? So, if we study it, it means a new story. Anything which is new, which has story, okay? So, it is an Italian word, means novella. Novella means new story, okay? New type of story, okay? Dear students, novel is a long narrative in prose. A very simple definition. Long narrative in prose. There are two main genres, prose and poetry. Okay? Poetry has music. Poetry has a specific repetition. Okay? Poetry has rhyme and rhythm. But the other thing, the opposite of it is prose. Okay? Prose is the simple form of simple genre of literature. Sometimes or almost there is no repetition, there is no grandeur use of words, there is no bombastic use of language. This is simple language. As I am speaking to you, this lecture is also a form of prose. Okay. So, dear students, first of all, we have literature. Literature actually depicts society, depicts actions of the people, whatever the people do, whatever we have from the beginning, whatever we have, either it is history, either it is a story, it is a drama, it is a newspaper, it is the Holy Quran. Holy Quran is also in literature. Okay, whatever we have in the written form or whatever we are taking from our forefathers, all those things are the form of literature. Okay, dear students, poetry and drama, these both are old forms of literature. These are too old. Okay, drama, poetry, these also sometimes these poetry also contains a story if it is epic poem. Okay, drama also has story, but drama had stories of the people who were kings, queens, who were gods. Okay, sometimes it depicts the normal people, okay, the layman. Okay, it depicts society, but sometimes in the previous, if we look at the Shakespearean dramas, what we find there? There are the stories of kings. There are the stories of elite class people. Okay. So, if we come towards novel, novel has its origin in 18th century. Dear students, stories were also there. Sometimes people regard Geoffrey Chaucer as the grandfather of English novel because he narrates the story. Okay, but he does not fulfills the requirements of the novel. Okay, we are just leaving everything which happened after Chaucer. We are coming toward the 18th century from where this novel arose. Okay, in 18th century there was Richardson. Okay, he wrote a novel named Pamela. पामीला उसका नाम था, या इसको दूसरे उसमें कहते हैं द वर्चू रिवार्डेड, पामीला, और उसका जो सब टाइटल है वर्चू रिवार्डेड. ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये इंग्लिश का पहला नावल कुछ क्रिटिक्स के नज़दीक. नावल एक और अगर हम इसको देखें, इट इज़ एन एम्बिगुअस फॉर्म. ओके, इट इज़ हैविंग प्रॉब्लम विद इट्स ओरिजिन because many people say that Daniel Defoe is the first novelist.
some people regard other men, but we are not going there. We are just talking about Richardson's Pamela. Okay, there are more comments with Richardson and its novella Pamela. Dear students, Pamela narrates the story of a girl, a young and beautiful girl who is a maid. Okay, we are not going with the story, dear student, but just for your little information, why it is not okay. We have two opinions. Some regard it as the first novel, but some do not regard it the first novel. Okay, who do not regard it as the first novel, they comment that it is it does not have this depiction of society. It is within the four walls of the house. It is an internal story. Society does not have any interfere a lot. Okay, so dear students, ये जो पामीला है, ये इसकी स्टोरी है कि एक लड़की किसी के घर में काम करती है और उस घर का मालिक जो है वो उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करता है 2-3 मरतबा, लेकिन वो उस अटेम्प्ट को नेगेटिव आंसर करती है, उसको पॉजिटिव आंसर नहीं करती। उसके जवाब में क्या होता है कि वो जो उसके घर का मालिक होता है ना, उसको वो लड़की अच्छी लगने लगती है कि ये बहुत पाकीज़ा लड़की है, और इसी पाकीज़गी की वजह से वो उससे शादी कर लेते हैं पामीला से। ठीक है, इसी वजह से इसका नाम वर्च्यू रिवार्डेड भी है। अब देखें, रिचर्डसन एक्चुअली ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि अगर इस तरह से फीमेल्स अच्छी हों, अगर फीमेल्स को खुद को पाकीज़ा रखना चाहिए ताकि उनकी अच्छे घरों में शादी हो जाए। ठीक है, अब देखें, ये ना एक पर्सनल स्टोरी है, इसको सोसाइटी से ज़्यादा लेना देना कुछ नहीं है। यही वजह है कि कुछ जो क्रिटिक्स हैं वो इसको पहला नावल कंसीडर नहीं करते। अब हम चलते हैं इसके बाद। रिचर्डसन ने पामेला लिखी। पामेला लिखने के बाद इसके जो जवाब में एक राइटर है, ठीक है, हेनरी फील्डिंग। एक्चुअली ही इज़ द फादर ऑफ इंग्लिश नावल, हेनरी फील्डिंग। उसने पामीला के जवाब में पामीला का मजाक उड़ाने के लिए पहले शामिला एक पैम्फलेट सा लिखा, नोवेला सा लिखा, लेकिन फिर भी उसने एक बड़े लेवल पर उसने फैसला किया कि मैं नॉवल लिखता हूं पामीला के जवाब में, और मैं उस पामीला को क्रिटिसाइज करूंगा। इसी तरह से, सेम उसी तरह से जैसे पामीला एक बड़ी बेचारी सी, बड़ी मासूम सी और बड़ी शरीफ सी लड़की है और वो हीरोइन है उस नावल की, इसी तरह से जोसेफ एंड्रयूज में, ठीक है, हेनरी फील्डिंग ने एक नॉवल लिखा है। नॉवल का नाम जोसेफ एंड्रयूज है। जोसेफ एंड्रयूज में हेनरी फील्डिंग ने क्या किया है? हेनरी फील्डिंग ने बिल्कुल एक कैरेक्टर दे दिया है, हु इज द सपोज्ड ब्रदर ऑफ पामीला। ठीक है, उसमें वो सारी खुसूसियात हैं जो पामीला में, याद रखिएगा क्योंकि इसने मजाक उड़ाने के लिए किया था, लिहाजा इसमें सारी खुसूसियात हैं वो पामी। तो स्टोरी फिर चलती चलती, मैंने आपको पहले कहा है कि ज़्यादा हम लोग इस पर डिस्कस नहीं करने वाले, तो उसमें वो सारी एक्चुअली ना ये एक पिकरेक नॉवल है, ठीक है, पिकरेस्क्यू भी कहते हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा एडवेंचर्स हैं, हीरो इज़ ऑन द रोड है, इन्स बहुत ज़्यादा हैं, एडवेंचर्स हैं बहुत ज़्यादा, मीटिंग्स हमें दिखाई गई हैं, ठीक है। तो ये एक्चुअली जो नॉवल की नीड्स हैं ये उन पे पूरा उतरता है। याद रखिएगा, नॉवल में रियलिज्म बहुत ज़्यादा ये होता है कि इसमें रियलिज्म होती है, इट कंसिस्ट्स ऑन रियलिज्म, ठीक है। तो आप लोग ये देखें कि नॉवल और ड्रामा और पोएट्री, ड्रामा पोएट्री और नॉवल में सबसे बड़ा जो डिफरेंस हमारे पास आ रहा है वो यही है कि नॉवल जो है वो ले मैन की लाइफ डिपिक्ट करता है। नॉवल जो है वो एक बंदे की एडवेंचर्स दिखाता है। नॉवल जो है वो लाइफ की क्रूलिटीज दिखाता है, लाइफ में मौजूद इनजस्टिस दिखाता है, लाइफ में मौजूद हार्डशिप जो है नॉवल में वो डिपिक्ट किया जाता है। नॉवल में आम लोग नजर आते हैं हमें, ठीक है। नॉवल में हमें वो किंग्स और क्वींस और उन चीज़ों का तस्वर नहीं मिलता। आम लोगों की जो मिजरीज हैं, आम लोगों की जो डिफिकल्टीज हैं, जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं, उनके सर्वाइवल की जो जंग है वो नॉवल में डिपिक्ट की जाती है, ठीक है। और उसके अलावा अगर हम लोग देखें तो नॉवल, अगर हम इसको यूं भी स्पेसिफिक करें, ये तो बना ही गरीब की जिंदगी दिखाने के लिए, ये भी गलत नहीं होगा, ठीक है। तो सारी ये चीज़ें कि लेमैन्स जो डिपिक्शन है ना वो हमें नॉवल में मिलती है, ठीक है। ये एक किस्म की लंबी कहानी होती है, इट इज़ अ लॉन्ग फिक्शियस नैरेटिव स्टोरी, ठीक है।
तो ये कुछ नावल के ऑल अबाउट था। तो हम लोगों को ये पता चला कि रिचर्डसन पामेला जो है, रिचर्डसन को कुछ लोग फादर ऑफ इंग्लिश नावल रिगार्ड करते हैं, ज़्यादातर नहीं करते। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कह रहे हैं जोसेफ एंड्रयूज इज़ द फादर ऑफ इंग्लिश नावल, और उस हेनरी फील्डिंग इज़ द फादर ऑफ इंग्लिश नावल। और जोसेफ एंड्रयूज जो है, इट इज़ सपोज्ड टू बी एज द फर्स्ट नॉवल ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। यहां तक ये बात हो गई। अब हम आगे चलते हैं कि नॉवल के एलिमेंट्स कौन से होते हैं, इसके इंग्रेडिएंट्स कौन से होते हैं, कौन कौन सी चीजें हों तो ये प्रॉपर नॉवल बनता है, वरना ये नॉवल कंप्लीट नहीं है। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं कि हमारे पास कैरेक्टर्स का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, देखें किसी भी स्टोरी, जब भी कोई आप स्टोरी नरेट कर रहे होते हैं, आपके पास कैरेक्टर्स का होना बहुत जरूरी है। कैरेक्टर होते हैं तो स्टोरी आगे जो है वो प्रोसीड होती है। ठीक है, तो कैरेक्टर्स नॉवल का सबसे अहम जुज़्व हैं। खैर जितने भी एलिमेंट लिखे हुए ये सारे अहम हैं, इनके अलावा जो है वो नॉवल नहीं रहता। तो कैरेक्टर्स, उसमें कुछ नॉवलिस्ट होते हैं बहुत ज़्यादा कैरेक्टर रखते हैं, लेकिन आजकल जो मॉडर्न नॉवल चल रहे हैं उनमें बहुत शॉर्ट कैरेक्टर्स होते हैं। स्टार्ट में जो 17वीं सेंचुरी में खास, जैसे हम लोग इंशाल्लाह हम अपने लेक्चर जैसे आगे बढ़ेंगे, जोसेफ एंड्रयूज एक नॉवल पढ़ेंगे, तो उसमें आप लोग देखेंगे इतने ज़्यादा कैरेक्टर्स हैं। तो कैरेक्टर्स फिर आगे बहुत ज़्यादा, तो कैरेक्टर का होना बहुत ज़रूरी है। और कुछ कैरेक्टर्स ऐसे भी नॉवलिस्ट्स ने दिए हैं जो कि शायद अब तक तो 200 साल 300 साल तक गुजर गए हैं, अब तक वो लिविंग कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, इतने स्ट्रॉन्ग कैरेक्टराइजेशन कुछ लोगों की होती है। उसके दूसरे नंबर पे हम लोग देख रहे हैं प्लॉट होता है। प्लॉट क्या कहते हैं, किसे कहते हैं? ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन ऑफ इवेंट्स होती है। ठीक है, ये इवेंट्स को जो है वो सीक्वेंस जब उनको दे दी जाती है, फॉर एग्जांपल अगर हम लोग देख लें जोसेफ एंड्रयूज की मिसाल लें, तो जो जोसेफ है, ठीक है, वो यूं होता है कि एक दफ़ा वो हमें मिलता है लेडी बूबी के घर वो काम कर रहा है, फिर हमें वो मिलता है वो वहाँ से भाग के उधर इन पे आया हुआ है, वहाँ पे कुछ चोरों ने उसे पकड़ के मार दिया है। ठीक है, उसको बहुत ज़्यादा मारा है। उसके बाद हम देखते हैं वो किसी और के घर जाके रहने लगे। तो ये इवेंट्स हैं मुख्तलिफ, इनकी जो सीक्वेंस होती है स्टोरी को कंस्ट्रक्ट करना, ये प्लॉट कहलाता है। कंस्ट्रक्शन या सीक्वेंस ऑफ, लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। ठीक है, मतलब ये है कि ये जो आप प्लॉट, जब आप स्टोरी बयान कर रहे होते हैं, ये नहीं कि पहली बात जो है वो आप बाद में बताएं, बाद वाली पहले बताएं, दरमियान वाली आप जो है वो बाद में बताएं, नहीं, आपने सीक्वेंस देखनी होती है। याद रखिएगा स्टोरी की सीक्वेंस बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे, मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताऊं, ये देखें स्टोरी ना यूं होती है, बात समझ आइए, ये एक ट्रायंगुलर शेप की होती है स्टोरी। यहां से हम लोग स्टार्ट लेते हैं, ये स्टार्ट होता है स्टोरी का। स्टोरी के बाद ये हमारा राइजिंग एक्शन होता है, राइजिंग एक्शन। ठीक है, यहां पे कन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है। ठीक है, यहीं से कन्फ्लिक्ट शुरू होता है, हमें मसला शुरू पता लग जाता है। ये क्लाइमैक्स होता है, ये क्लाइमैक्स होता है। क्लाइमैक्स के बाद जो है यहां पर इशू जो है वो रिजॉल्व होना शुरू हो जाता है, फिर यहां पे फॉलिंग एक्शन होता है। ठीक है, फिर यहां पे एंड होता है। कोई भी स्टोरी चाहे वो ड्रामा की है, चाहे वो एपिक पोएम की है, स्टोरी इस तरह से होती है। स्टार्ट होता है, ठीक है, उसमें कन्फ्लिक्ट बताया जाता है, राइजिंग एक्शन होता है, उसी में हम आगे मामलात बढ़ते हैं, फिर क्लाइमैक्स होता है, और उसके बाद जो है वो फॉलिंग एक्शन होता है, फिर एंड होता है। तो ये एक सीक्वेंस होती है इस तरह से। अब अगर आप लोग देखें तो तीसरे नंबर पे हमारे पास सेटिंग है। सेटिंग से मुराद है कि आपका सारा वहाँ बैकग्राउंड कौन सा है। ठीक है, आप कौन सी जगह पे, आप किसी देहात में, आपका देहात का जो आपके जो नॉवल का कॉन्टेक्स्ट है वो देहात का है, वो शहर का है, वो किसी दरिया का है, वो कोई समंदर के किनारे बैठे हुए, कहाँ बैठे हुए हैं। ठीक है, और उसकी सेटिंग में ये भी हम लोग देख सकते हैं कि उसका बैकग्राउंड कौन सा है। फॉर एग्जांपल के बैकग्राउंड से मुराद वो किस सोसाइटी को मद्देनजर रख के वो नॉवल लिखा गया। ठीक है, सेटिंग बड़ी अहम होती है। पॉइंट ऑफ व्यू देखें, स्टोरी जब नरेट की जाती है तो स्टोरी नरेशन के तरीके होते हैं, जैसा कि फर्स्ट पर्सन नरेशन होती है, थर्ड पर्सन नरेशन आमतौर पे नॉवेल्स में ज्यादा फेमस है। ठीक है, थर्ड पर्सन नरेशन ये देखा जाता है कि स्टोरी कैसे बयान की गई है, कौन है स्टोरी बयान करने वाला। तो एक बंदा बाहर बैठा हुआ है, ठीक है, वो सारे इवेंट्स को जानता है, वो प्लॉट देखता है, वो खुद नहीं है उसमें,
अगर फर्स्ट पर्सन है तो वो फर्स्ट पर्सन खुद स्टोरी में इन्वॉल्व होता है, लेकिन अगर फर्स्ट पर्सन नहीं है तो वो थर्ड पर्सन होता है। थर्ड पर्सन वो होता है जो स्टोरी में इन्वॉल्व नहीं होता, वो बाहर बैठ के सारे इवेंट्स को बता रहा होता है, उसे सब कुछ मालूम होता है। ये पॉइंट ऑफ व्यू होता है स्टोरी बयान करने का। थीम बड़ा अहम होता है जी। थीम आप ऐसे समझ लें, लेसन ऑफ द स्टोरी, पिक्चर ऑफ द स्टोरी, कि आप कौन सी पिक्चर दे रहे हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया रिचर्डसन ने पामीला लिखा, पामीला ने उसने एक हमें मैसेज दिया है, ठीक है, कि वर्च्यू रिवार्डेड, वर्च्यू इज ऑलवेज रिवार्डेड इफ फीमेल प्रोटेक्ट्स हर चैस्टिटी दे मे बी मैरिड इन वेरी अपर क्लास हाउसेस, ठीक है, दे मे मैरिड वेल। तो अगर हम लोग देखें तो ये एक पिक्चर होती है। थीम हर राइटर अपनी मर्जी का डालता है और कोशिश करता है हर बंदा कि अच्छा थीम डाले। अगर थीम अच्छा है तो नॉवल जो है वो फ्लरिश कर जाता है। थीम बिल्कुल अगर अगर अट्रैक्ट नहीं कर रहा तो स्टोरी फ्लॉप हो जाती है। तो ये कुछ हमारे पास एलिमेंट्स ऑफ नॉवल हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग चलते हैं टाइप्स ऑफ नॉवल। टाइप्स ऑफ नॉवल हमारे पास वैसे तो ज़्यादा टाइप्स हैं, लेकिन हम कुछ अहम खास डिस्कस कर रहे हैं। तो टाइप्स ऑफ नॉवल में हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास हिस्टोरिकल नॉवल है। हिस्टोरिकल नॉवल, अच्छा, नॉवल हिस्टोरिकल नॉवल कैसे होता है? एक नॉवल हिस्टोरिकल नॉवल से मुराद ये है कि जिसमें हिस्ट्री बयान की जाती है। फॉर एग्जाम्पल एक बहुत बड़ा बादशाह था, ठीक है, उस किंग जॉन, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वो एक बहुत बड़ा बादशाह था और उसके बारे में अगर एक नॉवल सा बयान, स्टोरी बड़ी फिक्शियस स्टोरी, कुछ एलिमेंट्स ऐसे हों जो कि बिल्कुल ओरिजिनल हों, ठीक है, कुछ एलिमेंट्स ऐसे हों जो कि रियलिज्म पे बेस करते हों, लेकिन कुछ ऐसे हों जो कि फिक्शियस, जो कि बिल्कुल इमेजिनेटिव हों, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं हिस्टोरिकल नॉवल। फॉर एग्जांपल आजकल आप लोग वो अर्तुगरुल एक ड्रामा देख रहे हैं, ठीक है, वो ऐसे समझ लें कि लंबी कहानी है, वो एक ऐसे समझ लें कि एक नॉवल है, ठीक है, और उसमें आप लोग क्या देख रहे हैं कि वो हिस्टोरिकल नॉवल है, और उसमें अगर आप लोग मज़ीद स्टोरी अगर वो है तो वो हिस्टोरिकल है। मज़ीद अगर आप लोग देखें तो उसमें यह है कि सारे जो उसमें आपको चीज़ें नज़र आती हैं वो रियलिज्म सारी नहीं है, रियलिस्टिक नहीं है सारी, कुछ चीज़ें इमेजिनेटिव हैं, लेकिन ज़्यादातर चीज़ें उसमें रियल। तो इस तरह से ये हिस्टोरिकल नॉवल, इसे सर वॉल्टर स्कॉट ये बंदा है, इसको जो है वो फादर, ये भी 18th सेंचुरी में, इसको फादर ऑफ इंग्लिश हिस्टोरिकल नॉवल कहा जाता है, ठीक है। हम लोग दूसरे नंबर पे आते हैं सेंटिमेंटल टाइप ऑफ नॉवल। सेंटिमेंटल, देखें कुछ नॉवेल्स ऐसे हैं जिनमें एक्शन दिखाए जाते हैं बहुत ज्यादा, कुछ स्टोरीज ऐसी हैं जिनमें एक्शन दिखाया जाता है, फाइट दिखाई जाती है, हीरो यहां से वहां जा रहा है, ठीक है, लेकिन कुछ नॉवेल्स ऐसे होते हैं जिनमें इमोशंस को एलिवेट करके दिखाया जाता है, एलिवेटेड इमोशंस होते हैं, उसको फीलिंग्स को बहुत बढ़ा चढ़ा के बयान किया जाता है, जैसा कि अभी हमने पामीला की बात की है, ठीक है, पामीला हो गया, या दूसरे जोसेफ एंड्रयूज भी कहीं ना कहीं हमारे पास सेंटिमेंटल नॉवल में भी आता है, ठीक है, क्योंकि उसमें अगर आप लोग देखें तो फैनी और जोसेफ की जो फीलिंग्स हैं उनको बहुत ज्यादा एलिवेट करके दिखाया गया, ठीक है। जोसेफ है वो फैनी के लिए उसने अपनी चेस्टिटी को उसने पाक रखा हुआ है, वो इवन के अपनी किरदार की पाकीज़गी के लिए मरने को तैयार हो जाता है, ठीक है, और वो किरदार की पाकीज़गी की जो उसके दिल में मोहब्बत आई है वो उसके बिलवेड के लव की वजह से, तो इसमें इमोशंस को बड़ा पीक करके दिखाया गया। इसके बाद अगर हम लोग देखें गॉथिक नॉवेल्स, डियर स्टूडेंट्स, आप लोग अक्सर अगर मूवीज देखते हैं, ओके, देयर आर हॉरर मूवीज, ओके, उसमें ना बहुत ज्यादा ऐसे एलिमेंट्स होते हैं कि जिससे आप बड़े एक मिस्ट्री से आप में पैदा होती है, ठीक है, आप खौफजदा हो जाते हैं, ठीक है, आप में एक इमोशनल फेयर सा पैदा होता है, ठीक है। तो ऐसे जितने भी नॉवेल्स होते हैं, ठीक है, कैसल, इसमें एक हमारे पास नॉवल है जी, इंग्लिश का पहला गॉथिक नॉवल भी इसे कहा जाता है बाज़ औक़ात, कैसल ऑफ ओट्रेंटो, ठीक है। इसमें हमारे पास ज़्यादातर हॉरर, जैसे हॉरर मूवीज आप लोग, तो ये इसमें होता है। इसके बाद हम लोग कहते हैं जी पिकारेस्क नॉवल में क्या होता है, या पिकारेक नॉवल भी कहते हैं। पिकारेक नॉवल में
ये इंतहाई अहम है। अभी हम लोग जो जोसेफ एंड्रयूज का जिक्र कर रहे थे, जोसेफ एंड्रयूज एक पिकरैक नॉवल है, ठीक है। अच्छा, उसमें क्या होता है, इसमें एडवेंचर्स दिखाई जाती हैं, इसमें रोड दिखाया जाता है, ज्यादातर जितने भी इवेंट्स होते हैं वो रोड पे होते हैं, ठीक है। ये नहीं कि इनसाइड द हाउस होते हैं, नहीं, घर के बाहर होते हैं, रोड पे होते हैं, इंस पे होते हैं। इसमें लड़ाई झगड़ा दिखाया जाता है, ठीक है। इसमें जो है वो मार पिटाई दिखाई जाती है, इसमें एडवेंचर्स दिखाई जाती हैं हीरो की, ठीक है। इसमें जो है अगर हम लोग देखें तो लव एलिमेंट्स भी होते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा जिसमें एडवेंचर्स हों, जो कि रोड, पिकारो एक वर्ड है, ये वहां से निकला है, स्पेनिश वर्ड पिकारो है। तो इसका मतलब होता है रोग, रोग, आवारा, बाहर घूमने फिरने वाला हीरो। तो याद रखिएगा कि ये पिकरैक नॉवल होता है। और हमारे पास जोसेफ एंड्रयूज जो है सबसे बड़ी एग्जांपल है पिकरैक नॉवल की। एपिस्टलरी नॉवल, एपिस्टलरी नॉवल देखें, कुछ नॉवल लेटर्स की फॉर्म में होते हैं, इसमें नैरेटिव फिर ज्यादा होते हैं, कोई लेटर कोई लिख रहा होता है, कोई लिख रहा होता है, उनको कंबाइन करके ना वो क्या करते हैं कि एक स्टोरी बना देते हैं। तो ये जो पामीला है ये इन द फॉर्म ऑफ लेटर्स है, ये एपिस्टलरी नॉवल भी है, ठीक है। लेटर्स की फॉर्म में जो नावल होता है एपिस्टलरी नॉवल होता है। फिर हम लोग देखते हैं जी ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल। ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल आपको पता होना चाहिए कि जो राइटर खुद लिखता है, राइटर खुद लिखता है और वो अपने हालात लिखता है। राइटर ने एक कहानी लिखी है, ठीक है, और चार्ल्स डिकेंस हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। चार्ल्स डिकेंस हम लोग इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। उसमें आप लोग देखेंगे कि वो ऑटोबायोग्राफीज लिखता है, ठीक है। तो इसमें इसके अलावा अगर हम लोग देखें डिकेंस, इसमें मैं लिखा है डिकेंस डेविड कॉपरफील्ड, ठीक है। तो इसको हम लोग देखेंगे। साइकोलॉजिकल नॉवेल्स, साइकोलॉजिकल नॉवेल्स, अच्छा इसमें ना साइकोलॉजिकल रियलिज्म होती है, ठीक है। और इसको जॉर्ज इलियट, एक फीमेल नॉवेलिस्ट गुजरी है, ठीक है, जॉर्ज इलियट, मैरियन एवंस उसका असल नाम है। और ये जो जॉर्ज इलियट है ये साइकोलॉजिकल नॉवेल्स लिखती है। साइकोलॉजिकल नॉवेल्स कैसे होते हैं, ऐसे एक राइटर नॉवेलिस्ट बैठा हुआ है और बस वो सोची जा रहा है, सोची जा रहा है, और उसकी फ्लो ऑफ थॉट्स आप कह लें, हमें सारे इवेंट्स का पता चलता है फ्लो ऑफ थॉट्स से, एक्शन नहीं नजर आ रहा होता। एक बंदी है बैठी हुई, सोच रही है, हमें उसकी सोच लिखी हुई मिल रही है, ठीक है। उसके जहन के थ्रू, उसके माइंड के थ्रू जो हमें स्टोरी पता चली है, वो स्टोरी आप समझ लें क्या होती है, साइकोलॉजिकल रियलिज्म उसमें पाई जाती है, ठीक है। जॉर्ज एलियट जो है इसका द मिल ऑन द फ्लॉस एक बड़ी एग्जांपल है। वर्जीनिया वुल्फ साइकोलॉजिकल रियलिज्म में ये भी फेमस है, ठीक है। टू द लाइट हाउस इसका वो जो है उसमें स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस बहुत ज्यादा दिखाया गया है, जो कहीं ना कहीं यही साइकोलॉजिकल रियलिज्म होती है। लास्ट हमारे पास है सोशल रियलिज्म। सोशल रियलिज्म, सोशल रियलिज्म क्या होती है? सोशल रियलिज्म में हमारे पास जो सोसाइटी इफेक्ट करती है इंडिविजुअल पे, वो इफेक्ट्स दिखाए जाते हैं, ठीक है, कि सोसाइटी कैसे एक बंदे के ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है, वो सोशल रियलिज्म होती है। जैसा कि हमारे पास हार्डी का टेस ऑफ डी अर्बरविल्स है, टेस ऑफ डी अर्बरविल्स, उसमें बेचारी जो टेस हमारे पास एक करैक्टर है, उस पर सोसाइटी क्या क्या जुल्म करती है, उस सोसाइटी ने उस बेचारी एक लड़की पर क्या क्या इफेक्ट किया है, ठीक है, वो एक सोशल रियलिज्म होती है। डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए काफ़ी है, तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोगों को ये समझ आई होगी। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हमारा जो लेक्चर होगा, हम उसमें चार्ल्स डिकेंस का जो नॉवल है द ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, वो इंशाल्लाह पढ़ेंगे, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।